गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड की कंसेप्ट और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इनके बारे में जानकारी ली है। आज हम अगला पार्ट, जिसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो कंसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व will be discussed in today's video lecture. Dear friends, we know that demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. यानी कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस और उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में जो फंक्शनल रिलेशन होता है, वह फंक्शनल रिलेशन टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले शेड्यूल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि हाउ मेनी क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इट मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज क्लोजली रिलेटेड विथ वन अनदर. सो प्राइस इज द फैक्टर विच इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड is depend on price of the commodity. So price impact on quantity demanded of the commodity. Whenever price is increases, then less quantity of the commodity will be demanded by the consumer. In the same way, whenever price of the commodity is decreases, then more quantity of the commodity will be demanded by the consumer. So there is a particular relation between price and quantity demanded. Generally it is inverse relation, and यह inverse relation टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले शेड्यूल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. सो इट इज द शेड्यूल विच शोज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर commodity. So there are two types of demand schedule. One is an individual demand schedule, which is we had seen in the last lecture, and second is called as market demand schedule, which will be explained in today's lecture. First we should know the concept of market demand. So market demand is the total demand for a commodity. So it is the total demand for a particular commodity from all consumer. It is not single consumer. All consumer at given price during given period of time. So it is demand by all consumer. So it is quantity demanded by all consumer, not a single consumer. All consumer, सभी कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तु की कीमत दी होने के बाद पर्टिकुलर समय अवधि में जितनी क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांड की जाती है, वही टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. सो हियर मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय all consumer, not only single consumer, all consumer. Suppose it is the market demand by all consumer. So he is a person who goes to sell an apple, and these are the consumers. Suppose there are 8 consumer, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8. So all 8 consumer द्वारा, यानी कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए है, वो सभी कंज्यूमर द्वारा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड, विच इज कॉल्ड एज
मार्केट डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर की यह मार्केट डिमांड होगी। सो मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी which is demanded by all consumer, not only single consumer, all consumer at different prices during given period of time. It is called as market demand. So market demand refers to sum total of all individual demand. It is the sum total of all individual demand for a particular commodity. So in another word, we can say that it is wider than individual demand, because here we will consider total quantity of the commodity which is demanded by all consumer, not only single consumer, all consumer at different prices during given period of time. So it is wider than individual demand, because here we will consider all consumer एट ए टाइम। सो ऑल कंज्यूमर द्वारा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो भी डिमांड की जाती है उस डिमांड को हम मार्केट डिमांड कहते हैं, और यह मार्केट डिमांड सिंगल कंज्यूमर की नहीं बल्कि ऑल कंज्यूमर की होती है, जबकि वस्तु की कीमत और उस वस्तु का परचेस करने का समय अवधि दिया हुआ है। सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ डिमांडेड बाय all consumer in a market at different prices during given period of time. So it is wider than individual demand. और यहाँ पर मार्केट डिमांड में सभी कंज्यूमर, नॉट ओनली सिंगल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो भी डिमांड की जाती है वह डिमांड का समेशन किया जाता है और उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड हम निकाल सकते हैं। सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो हियर market demand is wider than individual demand. Then market demand schedule. We have seen individual demand schedule. In the same way, market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of a commodity which all consumer are prepared to buy at various prices over a given period of time. So market demand is a tabular representation. Market demand schedule is a tabular representation which shows different quantities of a commodity which all consumer are prepared to buy at different prices during given period of time. So it is a market demand schedule is a tabular representation. ये भी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिसमें क्या दिखाया जाता है कि अलग अलग कीमतों पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सभी कंज्यूमर द्वारा जितनी भी मात्रा या क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांड की जाएगी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर समय अवधि में अलग अलग कीमतों पर, उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं. सो इट इज़ द डिमांड शेड्यूल which shows different quantities of the commodity which is demanded by all consumer in a market at different prices during given period of time. So here it is a tabular representation of various quantities of a commodity which is demanded by all consumer, not only single consumer, which is demanded by all consumer at different prices during given period of time. So जबकि पर्टिकुलर समय अवधि दिया हुआ है और वह समय अवधि में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की ऑल कंज्यूमर्स द्वारा अलग अलग कीमतों पर जो डिमांड की जाती है वह अलग अलग कीमतों पर ऑल कंज्यूमर द्वारा की गई क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड और उस वस्तु की अलग अलग कीमत उनको शो करने वाला टेबुलर फॉर्म में जो शेड्यूल होता है उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं. सो मार्केट डिमांड शेड्यूल
is a tabular representation of various quantities of a commodity demanded by all consumer at different prices during given period of time. So market demand schedule is a tabular representation which showing different quantities of a commodity which all consumer are prepared to buy at various prices over a given period of time. तो सभी कंज्यूमर द्वारा, ऑल कंज्यूमर द्वारा अलग अलग कीमतों पर किसी पर्टिकुलर वस्तु की जो भी क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांड की जाती है उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला जो शेड्यूल होता है उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं. सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस. यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कैसा निकाल सकते हैं? सो इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन, यानी कि अलग अलग कीमतों पर मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है वो सभी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड का यदि हम समेशन करते हैं तो वी में डिराइव मार्केट डिमांड शेड्यूल. तब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल सकते हैं और उसके लिए सभी कंज्यूमर की जो इंडिविजुअल डिमांड होती है उनका समेशन हमें करना होगा, जो जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल सकते हैं. हियर वी विल टेक वेरी इजी एग्जांपल. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन पर केजी इन RS. सपोज देर आर ओनली 3 कंज्यूमर इन अ मार्केट. मार्केट में सिर्फ 3 ही कंज्यूमर है, A, B एंड C. सो देर आर ओनली 3 कंज्यूमर्स in a market for a particular commodity A, B, C, and price of the commodity per kg is 10 rupees. So here when price is per kg 10 rupees, then a consumer will buy 5 kg of commodity. Then suppose B consumer who demand 10 kg and C consumer who demands 15 kg when price is 10 रुपीज़ पर केजी. सो ए की इंडिविजुअल डिमांड है 5 kg, बी की इंडिविजुअल डिमांड 10 kg, सी की इंडिविजुअल डिमांड 15 kg. व्हेनेवर वी विल समेशन इंडिविजुअल डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस देन वी मे गेट मार्केट डिमांड. सो हियर 5 kg प्लस 10 kg प्लस 15 kg इज इक्वल टू 30 kg, which is called as market demand when price is 10 rupees. So market demand schedule is obtained by horizontal summation of demand of all consumers at various prices. यानी कि अलग अलग कीमतों पर इंडिविजुअल डिमांड जो की है वो इंडिविजुअल डिमांड का समेशन यदि हम करते हैं तो हम मार्केट डिमांड निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर 10 रुपीज़ प्राइस पर ए कंज्यूमर की डिमांड 5 kg, बी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड 10 kg और सी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड 15 kg. यह इंडिविजुअल डिमांड का समेशन यदि हम करते हैं 5 + 10 + 15 वी में ऑब्टेन मार्केट डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इस प्रकार मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड of all consumer at various prices. Dear friends, here we will take a market demand schedule for a particular commodity. Price of commodity is measured in RS per kg, 10 rupees, 8 rupees, 6, 4 and 2 rupees. So suppose there are only 3 consumer in a market A, B and C. Only 3 consumer is available for a particular commodity in a market A, B and C. Whenever we will add A's individual demand plus B's individual demand and plus C consumers individual demand, then we may obtain market demand. Suppose when price is 10 rupees, A's demand 5 kg, B's demand 10 kg and C consumers demand 15 kg is equal to market demand 30 kg. In the same way, at different prices, अलग अलग कीमतों पर
ये ए कंज्यूमर की डिमांड, बी कंज्यूमर की डिमांड और सी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि तीनों कंज्यूमर की, यानी कि ऑल कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड जो होती है उनका समेशन यदि हम करते हैं तो अलग अलग कीमतों पर मार्केट डिमांड हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है 10 रुपीज़ प्राइस पर तीनों के इंडिविजुअल डिमांड का समेशन करने के बाद 30 केजी जो कि हमारी मार्केट डिमांड है। इस प्रकार 8 रुपीज़ प्राइस पर 45 केजी, 6 रुपीज़ प्राइस पर 60 केजी, 4 रुपीज़ प्राइस होने के बाद 75 केजी एंड व्हेन प्राइस इज 2 रुपीज़ देन 90 केजी विल बी मार्केट डिमांड। इस प्रकार अलग अलग कीमतों पर इंडिविजुअल डिमांड का समेशन करने के बाद हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो वी में obtain market demand for a particular commodity at different prices. So here मार्केट डिमांड निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल डिमांड का समेशन करना होगा अलग अलग कीमतों पर, तब हम मार्केट डिमांड एट वेरियस प्राइसेस निकाल सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत इजी है कि अलग अलग कीमतों पर ए, बी और सी अर्थात जितने भी कंज्यूमर है वह सब कंज्यूमर के इंडिविजुअल डिमांड का समेशन करना। जैसे कि 10 रुपीज़ की प्राइस पर एज इंडिविजुअल डिमांड, बीज इंडिविजुअल डिमांड, सीज इंडिविजुअल डिमांड, उनका हॉरिजॉन्टल समेशन 30 कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। इस प्रकार 8 रुपीज़ प्राइस पर 45, 10 + 15 + 20 45, 6 रुपीज़ प्राइस पर 15 + 20 + 25 60 विल बी मार्केट डिमांड। इस प्रकार अलग अलग कीमतों पर जो भी मार्केट डिमांड हमने निकाली है वह इंडिविजुअल डिमांड का समेशन है। और यहाँ पर भी यदि इफ वी ऑब्जर्व आवर डिमांड शेड्यूल, तो हम यहाँ पर भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन प्राइस गोज टू डिक्रीजेस, जब कीमत 10, 8, 6, 4 और 2 इस प्रकार रिस्पेक्टिवली कम होती है, तो मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तब उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड 30, 45, 60, 75, 90 रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रही है। यानी कि व्हेन प्राइस गोज टू डिक्रीजेस more quantities is demanded here. It means price decreases then quantity demanded is increases. In the same way, suppose price is 2 rupees and it is increases 4, 6, 8, 10, then quantity demanded in market will be decreases 90, 75, 60, 45, 30. So here हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि there is an inverse relation between price and market demand also. तो इस प्रकार प्राइस और मार्केट डिमांड में भी इन्वर्स रिलेशन होता है, ये भी कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देन वी विल गेट मार्केट डिमांड कर्व। अब हम मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे। तो मार्केट डिमांड कर्व इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल का, हमारे मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व निकालते समय वी हैव टू कन्वर्ट आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के रूप में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो यदि डायग्राम के रूप में एक्सप्लेन करना है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल का प्राइस वाला एक कॉलम और मार्केट डिमांड यानी कि लास्ट कॉलम समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड वाला जो कॉलम है वो दोनों कॉलम को हमें यहाँ पर लेना है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट मीन्स मार्केट डिमांड is measured on x axis. When price is 10 rupees, then how many units of the commodity will be demanded in market? 30. When price is 8 rupees per kg, then 45 units will be demanded there. When price is 6 rupees per kg, then 60 units will be demanded in market. It will be market demand. When price is 4 rupees per kg, then 75 units of kg will be demanded. Then price is 2 rupees per kg, then 90 kg will be market demand. इस प्रकार अलग अलग कीमतों पर जैसे कि 10, 8, 6, 4 एंड 2 यानी कि अलग अलग कीमतों पर वस्तु की जो डिमांड है पर्टिकुलरली जिसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे, वो मार्केट डिमांड अलग अलग कीमतों पर डिनोट्स करने वाले ये सभी पॉइंट्स यदि हम
उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो वी में डिराइव वन कर्व विच इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, जिसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। डी डी विल बी आवर मार्केट डिमांड कर्व। एंड ये डी डी हमने कैसा निकाला है कि अलग अलग कीमतों पर जो मार्केट डिमांड है, जैसे कि 10 रुपीज़ प्राइस पर मार्केट डिमांड 30 kg, 8 रुपीज़ प्राइस पर मार्केट डिमांड 45 kg, देखो ये है पॉइंट। 6 रुपीज़ प्राइस पर ये है 60 kg विल बी मार्केट डिमांड, यहाँ पर है वह पॉइंट जो दोनों को भी एक बताता है। साथ ही साथ व्हेन प्राइस इज 4 देन मार्केट डिमांड विल बी 75। इस प्रकार अलग अलग कीमतों पर वस्तु की जो मार्केट डिमांड है वह मार्केट डिमांड डिनोट्स करने वाले ये पॉइंट है। और इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो वी में डिराइव वन कर्व विच इज कॉल्ड एज market demand curve. DD is our market demand curve, and whenever we will observe our market demand curve, it is downward sloping. Downward sloping, this arrow denotes downward sloping market demand curve from left to right. So market demand curve is downward sloping from left to right, left to right, downward sloping, and downward sloping from left to right. Demand curve, market demand curve indicates inverse relation between price and quantity demanded of a commodity. So it is denotes inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. So market demand curve has also negative slope. In another word, it is downward sloping from left to right, and it is constructed on the base of market demand schedule. In another word, it is graphical form of our market demand schedule. तो इस प्रकार मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम मार्केट डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने मार्केट डिमांड की कंसेप्ट एज वेल एज मार्केट डिमांड का शेड्यूल, साथ ही साथ मार्केट डिमांड का कर्व, इनके बारे में जानकारी ली है। थैंक यू सो मच।